اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ اپنی طاقت و صحت کو بڑھانے اور ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے ہر روز صبح ناشتے میں خود بھی استعمال کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی استعمال کرائیں۔ اسی طرح آپ اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا بزنس کر کے ہر مہینے 15 سے 25 ہزار روپے تک آسانی سے کما سکتے ہیں۔ مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں 9890963757۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں، ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ افغانستان کو، یعنی یوں سمجھیے کہ آپ غور سے اس خبر کو سنیں کہ افغانستان کو پاکستان پر حملے کے لیے لانچنگ پیڈ نہیں بننے دیں گے۔ کل عدم ٹی ٹی پی جو بین ہیں، ٹی ٹی پی اور داعش خراسان کے گرد گھیرا تنگ کرنے کا امریکہ کا یہ فیصلہ سامنے آیا ہے۔ افغانستان میں کئی خودکش حملوں اور پاکستان افغانستان میں داعش کے اپنی سرگرمیوں کو تیز کرنے کے بعد اب امریکہ نے داعش، خراسان گروپ اور بین تنظیم تحریک طالبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی جیسے تمام گروہوں کے خلاف کارروائی کرنے کا فیصلہ امریکہ نے کیا ہے، اور بڑا بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان کو پاکستان پر حملے کے لیے لانچنگ پیڈ بننے نہیں دیں گے۔ ڈان میں شائع ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ نے کہا کہ دونوں دہشت گرد تنظیمیں پاکستان اور افغانستان میں اپنی سرگرمیاں تیز کر رہی ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے ڈان کو بتایا کہ ہمیں رپورٹ ملی ہے کہ کابل میں پاکستانی ناظم الامور پر حملے کی ذمہ داری داعش خراسان گروپ نے قبول کی ہے۔ ترجمان نے کہا کہ امریکہ القاعدہ، داعش، خراسان، ٹی ٹی پی اور دیگر دہشت گرد گروہوں کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے پرعزم ہیں، جو امریکہ اور دیگر شراکت داروں اور دوست ممالک کے لیے خطرہ ہیں۔ یعنی پاکستان، افغانستان یا پاکستان میں پنپ رہی دہشت گرد تنظیموں کے خلاف امریکہ مورچہ کھولنے کی تیاری کر رہا ہے۔ ناظرین، گزشتہ کل سے یہ ایک تصویر ہے جس میں 2 بچیاں ہیں، شامی بچیاں ہیں، شامی لڑکیاں ہیں، ان کی تصویریں کافی وائرل ہو رہی ہے کہ بھوک اور سردی، شام کا حال آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ان چہروں کو دیکھیں، کتنی معصوم بیٹیاں ہیں، بچیاں ہیں، لیکن کتنا برا حال ہے۔ بھوک اور سردی کی داستان سناتے ہوئے شامی لڑکی کے آنسو ٹپک پڑے۔ چچا سردی ہے، چچا بہت سردی ہے، سردی اور بھوک، ہر روز ہم اسی طرح سوتے ہیں جس دن سے ہمارے والد کا انتقال ہوا ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ ایک شامی لڑکی نے اپنے حالات کا درد بیان کیا۔ یہ تکلیف اسے بغیر کسی قصور کے پہنچی تھی۔ چند گھنٹوں میں اس کے یہ الفاظ سوشل میڈیا پر چرچا بن گئے۔ ویڈیو کلپ ٹویٹر پر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ اس کلپ میں بے گھر ہونے والے
कैंपों में सर्दी और भूख के साथ रहने वालों की तकलीफ बयान की गई। इससे भी बुरी हालत, बदतर हालत जंग के साथ रहने वालों की है। इस जंग ने किसी को भी अपनी बर्बादी की लानत से महफूज नहीं रखा। उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। शाम की लड़ाई के दौरान वो बच्ची जिसकी उम्र चंद बरसों से ज्यादा नहीं है, अपने आंसू रोक नहीं सकी क्योंकि उसके गालों पर मोतियों की तरह वो आंसू बिखर गए। इसके साथ उसकी बहन भी है जो परेशानी के साथ बताने लगी कि नकले मकानी हिजरत की लानत का शिकार शाम का शिमाल किस तकलीफ दे दौर से दोचार है। खैर, यह खबर मैं इसलिए सुना रहा हूं कि मैं हमेशा एक जुमला कहता हूं कि जंग मसाइल का हल नहीं है, जंग नुकसानदेही है और बेकसूर लोग इसका शिकार बनते हैं। आज ये दोनों शामी मासूम बच्चियों के आंसू टपकते हुए देखते पूरी दुनिया में ये वीडियो वायरल हो गई है। लेकिन वीडियो वायरल होने से अगर आपके मेरे दिल में दर्द नहीं हुआ है तो मैं समझता हूं कि हम इंसान कहलाने के लायक भी नहीं हैं। कांटेक्ट कीजिए डॉक्टर जावेद से, जो कि गुप्त रोग विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, बवासीर, शुगर गारंटी से बिल्कुल ख़त्म, गैस, तेज़ाब, लिकोरिया, लीवर, किडनी, गुर्दे में पथरी। अगर आप देश विदेश में उनसे दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो, आप हमसे दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं देश विदेश में। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, इजरायली फौज के आतंकवाद को मैं लगातार खुलकर आप तक पहुंचाता हूं, जबकि दुनिया में इंटरनेशनल जो आतंकी मीडिया है, इंटरनेशनल गोदी मीडिया है, जो बड़े बाप की गोद में बैठी हुई है और इजराइल के नाजायज बाप की गोदी में बैठी हुई है, वो इजराइल के आतंकवाद को नहीं बताती। इस वक्त भी खबर आ रही कि इजरायली फौज की फायरिंग से फिर 3 फलस्तीनी शहीद हुए हैं। ये वाकया जनीन में सुबह सवेरे पेश आया। मगरिबी किनारे के शहर जनीन में काबिज फौज यानी आतंकवादी फौज, काबिज फौज कहा, डायरेक्ट कहें कि आतंकवादी इजरायली फौज की वहशियाना कार्रवाई गुज़िश्ता कल सुबह जुमेरात के दिन सामने आई। वजारत सेहत के मुताबिक फौज ने तुलुए आफ्ताब के साथ ही हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 3 फलस्तीनी फिर शहीद हुए हैं। ताहम अभी इजरायली फौज या उसके किसी तर्जुमान ने इस वाक़े के बारे में कोई बयान जारी नहीं किया है। और जो 3 फलस्तीनी शहीद हुए हैं, इन फलस्तीनियों में एक छोटा मासूम 12 साल का फलस्तीनी बच्चा और अमरीकी खातून सहाफ़ी अबू आकिला भी शामिल है। ये मैं जो आपको बता रहा हूं, मैं ये आपको बताऊं कि मगरिबी किनारे में मजमुई तौर पर अब तक 140 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं और 126 इजरायली मारे गए हैं। और इन शहीद होने वाले फलस्तीनियों में एक 12 साल बच्चा और एक अमरीकी जर्नलिस्ट सहाफ़ी अबू आकिला भी शामिल हैं। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जी हाँ, कतर की आलिशान पुरशिकोह मसाजिद गैर मुल्की शायकीन के लिए बेहद मकबूल हो गई है। आप जानते हैं कि कतर में फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है और कतर वालों ने जिस तरीके से खेल के मैदान को दावत का मैदान बना दिया है, पूरी दुनिया कुफ्र बौखला गई है, इस्लाम के दुश्मन बौखला गए हैं, क्योंकि वहाँ पर सैकड़ों हज़ारों लोग इस्लाम की तरफ आ रहे हैं और इस्लाम की सही तस्वीर देखकर काफ़ी मुतासिर हो रहे हैं। इस वक्त खबरें ये भी आ रही है कि कतर में जो आलिशान पुरशिको मस्जिदें हैं वो गैर मुल्क के शायकीन में बेहद मकबूल हो गई है। उन्होंने बताया कि कतर के मस्जिद में बड़ी तादाद में गैर मुल्की आ रहे हैं, मस्जिद की तामीर और खूबसूरती की तारीफ़ करते हैं। और ये भी बताया कि गैर मुल्की शायकीन मस्जिद में 5 वक्त नमाज पढ़ने वालों को देखते हैं और अजान को सुनते हैं, अजान देने वाले को देखते हैं और फिर इस्लाम की इन तमाम चीज़ों से मुतासर होकर इस्लाम से करीब आ रहे हैं। सैकड़ों लोगों ने तो बाकायदा इस्लाम कबूल भी कर लिया है। कई फैमिलियाँ दामन इस्लाम में आ चुकी है और अपनी दुनिया और आखिरत की नजात का सामान इख्तियार कर चुकी है, जिससे दुनिया कुफ्र और दुश्मनान इस्लाम बौखला रहा है। आइए नाज़रीन, पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि अफगानिस्तान में इस वक्त तालिबान की हुकूमत है और तालिबान की हुकूमत आने के बाद ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि इक़्तिदार संभालने के बाद अफगान तालिबान की जानिब से पहली बार आम सजाए मौत दी गई। अफगान तालिबान ने तस्दीक की है कि एक अफगान शहरी को कत्ल का जुर्म साबित होने के बाद सरे आम सजाए मौत दे दी गई। डॉन अखबार में शाये इदारे AFP की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता बरस इक़्तिदार संभालने के बाद ये तालिबान की जानिब से दी जाने वाली पहली सजाए मौत है। गुज़िश्ता माह तालिबान के सुप्रीम लीडर ने जजों को हुक्म दिया था कि वो शरई कवानीन को मुकम्मल तौर पर नाफिज करें, जिनमें सरे आम फांसी,
संसार, कोड़े मारना, चोरों के हाथ काटना शामिल है। इसके बाद से कई मुजरिमीन को सरेआम कोड़े मारे जा चुके हैं और ये पहली सजाए मौत भी सरेआम दी जा चुकी है, जिस पर भी दुनिया कुफ्र काफी बौखला रहा है। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।